کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ جو فوجی حکومتوں اور جائیدادوں کے چکر میں پڑ جائے وہ جنگیں نہیں لڑ سکتے پیارے. آزادی کی قیمت ہوتی ہے بی بی، جو جس طرح بھی ادا کرے. کیوں رکھی ہے اتنی بڑی بڑی فوجیں؟ کیا تیر مارا ہے؟ یا چین فتح کرو گے یا ایران؟ لوگ جو کہنا چاہتے ہیں سر انہیں کہنے کی اجازت دیجیے. ان پر دہشت گردی، بغاوت، سازش یا غداری کے مقدمے مت بنائیے. سیاستدان کی انہی حماقتوں کی وجہ سے یہ فوجی جرنیل فائدہ اٹھاتے ہیں. تمہاری تنخواہ کہاں سے آتی ہے؟ ملٹری اکاؤنٹ سے سر. وہ تو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں یو ایڈیٹ. تمہاری تنخواہ ان لوگوں کے خون پسینے کی کمائی سے آتی ہے جنہیں تم مار رہے ہو. یس سر. تنخواہ دیتا ہے وہ مالک ہوتا ہے اور جو تنخواہ لیتا ہے وہ ملازم ہوتا ہے. تو تم ان کے کیا ہوئے؟ ملازم سر. میں اپنے خون پسینے کی کمائی سے ان کافر فرنگیوں کے ملکوں سے جو کماتا ہوں آپ اور آپ جیسے دوسرے عیاش اور نااہل حکمرانوں کی عیاشیوں کے لیے وطن بھیج دیتے. آپ نے ثابت کیا تھا سر محل کس کا ہے. آپ نے ثابت کیا تھا نواز شریف غدار ہے. غلام محمد، سکندر مرزا، ایوب، یحییٰ، بھٹو، ضیاء، اسحاق، سب نے دوسروں کے ساتھ جو کیا تھا ان کے ساتھ بھی ویسا ہی یا اس سے برا سلوک ہوا ہے. شاید پہلے آپ کی بات ٹھیک ہوتی مگر اس دفعہ جو ہونے والا ہے بہت عرصے تک کوئی جنرل یا کوئی سیاستدان کسی کی پیٹھ میں چھرا گھومنے کی ضرورت نہیں کرے گا. میں تو اپنے ہی لوگوں کو قائل نہ کر سکا کہ انہیں غلامی کی یہ زنجیریں توڑ کر آزاد ہونا ہے. ہم انہیں بھونکنے ضرور دیتے ہیں مگر باندھ کے رکھتے ہیں، باندھ کے. کس مائی کے لال میں اتنی ضرورت ہے کہ کسی آفیسر کے بارے میں انویسٹیگیشنز کرانے کی سوچے بھی؟ جنرل صاحب، اگر وہ بندوقیں اٹھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ کسی میں حوصلہ اور جرأت نہیں بچی ہے تو اب وقت آ گیا سر کہ ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. جس دن یہ سادہ لو عوام خواب غفلت سے بیدار ہو گئے سب کو پتہ چل جائے گا کہ کس میں کتنی جرأت اور حوصلہ ہے. آپ لوگ فرانس، روس اور چین کے انقلابات کو بھی بھول جائیں گے. تاریخ گواہ ہے سر، جب بھی لوگوں میں شعور اور احساس پیدا ہوا ہے انہوں نے بڑے سے بڑے آمروں، ظالم سے ظالم اور ناانصاف سے ناانصاف حکومت کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر کے رکھ دیا. میں ایک پروفیسر ہوں. آپ کے سامنے یہ سب کچھ پیش کرنے کی پاداش میں مجھے کافر، دہشت گرد، غدار اور نہ جانے کیا کیا کہا جائے گا. یہ کہ میں بک گیا ہوں اور یہ بھی کہ یہ سیاستدانوں، ملک اور سب سے بڑھ کر فوج کو بدنام کرنے کی ایک گہری سازش ہے. ہمارا مقصد کسی پر کیچڑ اچھالنا یا کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے. ہم تو اپنی قوم کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ کوئی اور ہماری مدد کرنے نہیں آئے گا، ہمیں خود ہی اپنی مدد کرنا ہوگی. جو قومیں اپنا احتساب نہیں کر سکتی ان پر کبھی بگلا بھگت سیاستدانوں اور کبھی آگ اگلنے والے فوجی اجدہوں کی شکل میں شدید عذاب نازل ہوتا ہے. پاکستان اب تک اسلامی بن سکا اور نہ ہی جمہوریہ. دنیا اب اسے آکوپائیڈ ریپبلک آف پاکستان کے طور پر جانتی ہے. پاکستانی فوج ایک گھنٹہ گھر بن چکی ہے جس کے گرد ہم سب کی زندگیاں گھومتی ہیں. بدقسمتی سے چند بددیانت اور لالچی جرنیلوں کی حرکتوں کا خمیازہ پوری فوج بلکہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. بیٹھو پروفیسر. آلو کے پراٹھے، الو کے پٹھے، ہوتا ہی تو الو کے چمپاٹا، ہنومان کے چیلے، شیطان کے چرکے. اور بیٹھو، تو کہاں بچہ دیکھنے آیا ہے؟ تو بڑا پھٹ گیا جموں کی بکری کا دودھ پینے کے. ارے یہ حیران کیوں ہوتے ہیں پروفیسر؟
ये तो हमारी लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप की एक झलक है। पार्टीशन से पहले हम एक ही गांव में रहते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। फिर अशरफ मुहाजिर बनकर पाकिस्तान चला गया, लेकिन हमारी दोस्ती अब तक कायम है। लेकिन आप इंडियन जनरल हैं, वो पाकिस्तानी, आपको तो जानी दुश्मन होना चाहिए था। अरे ये दुश्मनी दुनिया के लिए है। जर्नलों की दोस्ती में ही जर्नलों का फायदा है। तो फिर आप इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती क्यों नहीं करवा देते? आपके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, और फिर इसमें दोनों कौमों बल्कि पूरी दुनिया का फायदा है। इसलिए इसमें जर्नलों का नुकसान है। छोड़ो इस बात को। एनीवे ही इज कमिंग टुमारो, तुम देखना तो। I can't believe this. भाई कल तुम हमारे साथ एयरपोर्ट चलो, मजा आएगा। I'm not sure कि जनरल अशरफ इसे पसंद करेंगे। आप तो जानते हैं कि मैं जंगों और असले के फैलाव के खिलाफ किताबें लिखता रहता हूँ। किस अहमकों की जन्नत में रहते हो मियाँ? इन किताबों वताबों से अगर फर्क पड़ता तो मैं तुम्हें अपने करीब आने देता। मैं समझा आप रिटायर हो चुके हैं, इसलिए। डोंट वरी अबाउट दैट। अशरफ को वैसे भी लिखने पढ़ने से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो तो यारबाश आदमी है, और ये किताबें वताबें सब बेकार है। उसी असाइनमेंट पे काम कर रही हूँ मैं। हाँ, लेकिन रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई ना, कल भेज दूंगी तुम्हें शाम तक। अच्छा, अभी तो मैं कॉन्सुलेट में हूँ। अरे तुम्हें बताया था ना कि जनरल अशरफ के डिनर की ब्रीफिंग है। हाँ अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। Okay, I think that's it. Enjoy your dinner tonight, and if you have any question, Chaudhary sir. Any questions? Okay, I guess in that case, I think thank you everyone, and see you at the dinner. Thank you. Thanks. सियासत छोड़ दी, मगर कॉन्सुलेट के चक्कर लगाने नहीं छोड़े। सुना आपने? मैं तो यहाँ सिर्फ कम्युनिटी की सर्विस के लिए, और इनकी तरह अफसरों के पीछे पीछे दुम हिलाती नहीं फिरती। नेवर माइंड हिम, पर आई मस्ट से, अगर सियासत से आप जैसे ईमानतदार और बेगर्ज लोग निकल जाएंगे तो फिर इन्हीं जैसे लोग रह जाएंगे, फौजियों के परवरदा तो फैरी सियासतदान। कर्नल, आप भी तो फौजी हैं, फिर आप इतने डिफरेंट क्यों हैं? फौज में ज्यादातर लोग मुझ जैसे ही हैं, ईमानतदार मगर मजबूर। मैं तो फौज छोड़ कर निकल आया, लेकिन वो फंसे हुए हैं। क्या करते फिर राव? सर, वो जनरल साहब की डिनर की ब्रीफिंग दे रहा था। वो सर, हमारा भी ख्याल रखिएगा सर, वो आखिर सारे फैसले उधर ही होते हैं। सर जी, इस बार तो जनरल साहब से थोड़ा टाइम ले लें। चौधरी साहब कुछ सब्र भी किया करें। जनरल साहब यहाँ पे जाती दौरे पे आ रहे हैं, वो तुम्हारी फरियादें सुनने नहीं आ रहे।
अरे साईं, आजकल बहुत इन है आप मीडिया में। मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मेरा तो काम ही ये है। इन आउट तो आप जैसे सियासतदान होते हैं। वैसे आप तो हमेशा मिनिस्टर रहते हैं मियाँ साहब। माफ करना, मैं चौधरी हूँ, मियाँ नहीं। आप सब एक ही थैली के जट्टे बच्चे हैं। अरे साईं, कम से कम इंटरव्यू करवा दे चैनल 9 पे। आपका इंटरव्यू तो चैनल 10 पे होना चाहिए। चलो 10 पे। हाँ वलीदार, क्या रिपोर्ट है भाई? सर जी, इसका तो सर्किट शार्ट हो गया जी। ओए सर्किट शार्ट नहीं है, तुम्हें कितनी दफा समझाऊं? सर्किट शार्ट। वही सर जी, सर्किट शार्ट। बाकी तो तुम सब ठीक बोल लेते हो, ये सर को शर क्यों कहते हो? सर को सर ही कहेंगे मेजर साहब। अच्छा चल बकवास बंद करो। हाँ ये बताओ अब क्या करें? ये तो आप बताएं साहब जी, मैं तो गरीब सूबेदार हूँ जी। और मैं क्या बताऊँ? दूसरी गाड़ी मंगवाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। आज तो कॉन्सुलेट बंद है सर जी, छुट्टी का दिन है ना। प्राइवेट गाड़ी मंगवा लेते हैं। प्राइवेट गाड़ी कहाँ से मंगवाएंगे? बड़ी बिस्ती की बात है। जनरल साहब लोग तो मेरी चमड़ी देड़ देंगे। सर जी, आपकी चमड़ी देड़ी तो मेरी तो हड्डियों को छू पी जाएंगे जी। क्या होगा, जल्दी कुछ सोचो। मैं क्या सोचूं? मेरा तो ज़हन ही माऊफ। अब हुआ जी, अब तो 20 साल से फौज में है। क्या कहा तुमने? क्या कहा? बहुत बकवास करने लगे तुम। मैं तुम्हें जरा सी ढील देता हूँ वलीदार, और तुम पूरी लस्सी पेट लेते हो। सर जी, रस्सी भी जालम गर्दन में लिपटती है सर जी। ओए सुस्त तो तुम हमेशा से थे, खा खा के मोटे सुअर बन गए। मेरा क्या कसूर सर जी, ये तो आपकी कंपनी का असर है जी। क्या बक रहे हो तुम? मेरी कंपनी का असर है? मैं तो आपके साथ हूँ सर जी। हराम का खा के मोटा हो रहा हूँ, बाकी सूबेदार तो भूखे मर रहे हैं जी। नॉनसेंस। कोई काम की तरफ ध्यान दो वलीदार। अब बताओ क्या करोगे? मेरा ख्याल है सर जी, मास्टर साहब को बुलवा लेते हैं, यही सबसे फास्ट तरीका है जी। ओह एक्सीलेंट, तुम्हें पहले क्यों नहीं ख्याल आया इसका? ओह मास्टर नहीं है, जाहल। प्रोफेसर। वही सर जी, याहिल। अच्छा तुम प्रोफेसर को फोन करो फटाफट, मैं जनरल साहब लोगों को ऑपरेट करता हूँ। सर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, मैं अभी चेकअप करके बताता हूँ सर। ओके, रिपोर्ट बैक। और मंगवाओ एम्बेसी से लिमोजिन है, मैं अपने ही गाड़ी ले आता तो अच्छा था। प्रोटोकॉल ही होता है मियाँ, तुम्हें क्या पता, कभी हुकूमत की होता है। हाँ, बक बंद कर, कभी हुकूमत के बंद।
लिहाज भैया, अब बताओ तुम्हारी ये लिमोजीन बेहतर है या मेरी खटारा गाड़ी? वो क्या खटारा उठा के ले आवे? और क्या लाता, मेरे पास तो यही गाड़ी है। भाई तुम सिविलियन, ये दिमाग इस्तेमाल करने से कतराते क्यों है तुम? ब्लडी सिविलियन। अब तो तेरे बाल भी सफेद हो गए यार, जो है वो है, जो नहीं है नहीं है, कभी केयर ही नहीं। सर वो प्रोफेसर आ तो गया सर, लेकिन ओए, ये क्या चीज है? ये प्रोफेसर की गाड़ी है। मैं गाड़ी की नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसकी ये क्या चीज है? प्रोफेसर, टिपिकल सिविलियन, इंटरेस्टिंग आदमी है। हाँ, मिलवाता हूँ। कैसे कैसे घटिया लोगों से तल्लक है तुम्हारा? क्या मतलब घटिया? ओए चरिए, ये बहुत पढ़ा लिखा बंदा है, कह तो रहा हूँ, प्रोफेसर है। इसकी हालत तो देखो, ना ढंग के कपड़े हैं, ना ढंग की गाड़ी। प्रोफेसर हमारी फुट। पढ़ा लिखा बंदा है, गाड़ी कपड़ों से इससे क्या ताल्लुक है? पढ़ा लिखा होने से क्या होता है? ऐसे पढ़े लिखे हमारे मुल्कों में टके के दो मिलते हैं, दो। अरे हमें कहाँ मौका मिलता है तुम पाकिस्तानी जनरलों के जैसे हुकूमत करने का। हमें अभी बहुत कुछ सीखना है तुम लोगों से। हाँ, हम जंगी महारत में बहुत आगे निकल गए। जंगी महारत में या जंगे ना करने की महारत में? जो फौजी हुकूमतों और जायदादों के चक्कर में पड़ जाए वो जंगे नहीं लड़ सकते प्यारे। मैं तो सियासत की दावपेच की बात कर रहा था, इसमें तो तुम लोग बहुत आगे निकल गए हो। अयूब मुंशी था तो जिया वकील, तुम तो पूरे शैतान हो गए हो, वो भी बड़े वाले। तुम्हें हमारे जैसे यशी नसीब कहाँ होती, इसलिए जलते हो तुम लोग। जलने वाले खामो काला बालम, जलते हैं अरमान मेरा दिल रोता है। चल भाग बसंती भाग। अरे हम कोई कम है फ्रैंक सिनाट्रा से? अरे बाप रे, ओह माय गॉड, हशर हो गया। बैठो प्रोफेसर। आहा, तो ये पढ़ते हो तुम आजकल? जी सर, आपको तो पता मैं आजकल किताब लिख रहा हूँ, इसीलिए मैं जितना वक्त आपके साथ गुजारता हूँ ताकि कुछ सीख सकूं, और जब मौका मिलता है कुछ न कुछ पढ़ लेता हूँ। हमारा ये सियासतदान क्या जाने अय्याशी क्या होती। हमें देखो, सब कुछ करके किसी को पता नहीं चलने देते। इसे कहते हैं जहानत। हाँ, तो प्रोफेसर क्या फाइंड आउट किया तुमने? दिस इज एज यूजुअल। सियासतदान बहुत ज्यादा करप्ट हैं और फौजी बहुत नेक। प्रोफेसर, यू नो टू मच, यू आर अ डेंजरस मैन। सर, आपको इत्तेफाक हुआ ये किताब पढ़ने का? ये क्या है? ऐसी कई किताबें हम खुद लखवा चुके हैं। अच्छा फरमाया आपने। अगर ऐसी बात ना होती तो इस वक्त पेंडोरा बॉक्स से बड़ी किताब निकल रही होती, GHQ से बाजारे हुस्न था। अरे कौन माइका लाल निकालेगा ऐसी किताबें, और कौन जुर्रत करेगा उन्हें पढ़ने की? सब ज़नख़े हैं यहाँ, ज़नख़े। आखिर सच्चाई कब कौम के सामने आएगी? सच्चाई किस में जुर्रत है सच्चाई की बात करे? इस कौम का ज़मीर मर चुका है। मैं खुद रोज दफनाता हूँ 136 वजीरों मशीरों का ज़मीर अपने हाथ से मार कर।
अगर किसी एक का ज़मीर भी जिंदा होता तो आज तू जिंदा ना होता। ऐसी बात न कहें जनरल साहब, इतनी बड़ी कौम है, 16 करोड़ में चंद लोग तो ऐसे होंगे जिनके सीने में दिल धड़कता है, जिन्हें चोट लगती है तो दर्द होता है। 16 करोड़ 16 करोड़ क्या 16 करोड़ लगा रखी है तुमने? मेरे 120 करोड़, तुमसे 8 गुना ज्यादा कौम में एक भी मैखालाल नहीं जो उठकर कहे इतने अरबों रुपयों क्यों लगा रहे हो फौजों में? क्यों रखी है इतनी बड़ी बड़ी फौजें? क्या तीर मारा है? या चीन फतह करोगे या ईरान या सीधा अमेरिका पर हाथ डालोगे? अगर इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते तो इतनी बड़ी सी बजट में से 10% ही सही कौम की तालीम पर लगा दो, सेहत पर लगा दो। लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं। 120 करोड़ लोग हैं यार, 120 करोड़। ऐसा लगता है कि 120 करोड़ लाशें हैं, लाशें। और 16 तुम्हारे, वो बंगाली, नेपाली, श्रीलंकन, पूरे 2 अरब लोग, 2 बिलियन पीपल। कोई मजाक नहीं, नो ब्लडी जोक। और जिस दिन अपनी इस लंबी नींद से उठ गए ना तो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देंगे, चीनियों की तरह। कहीं जोर से न कह देना ये बात, उन्हें पता न चल जाए। सोने दो, गाफिल हैं, जाहिल हैं कुत्ते के पुत्र। पियो, लो पियो, चक जाओ मोतियां वाले हो। ओ चल यार, जा यार, जा। नियत दे शराबी रहना, नियत दे शराबी रहना। हर नाम को रहनी ना रहनी, तेरा पीछा नहीं छड़ना। Thank you very much, General Zamir, for meeting with me at such a short notice. Pleasure is always mine. कैसी चल रही है आपकी पीस कॉन्फ्रेंस? हमारे बॉस और उनके बॉस दोनों ही जंग पसंद हैं, तो फिर पीस किस बात की? Why don't you make peace with General Ashraf? Price is too much. आप चीफ बनने का चांस लूज कर रहे हैं। There's no chance. They don't want me. वो तो सदर हैं अब, वर्दी तो आइन की पासदारी में पहनते हैं। चीफ तो कोई दूसरा होना चाहिए ना? फिर उनकी कौन सुनेगा? सदरों की कौन सुनता है? हमारे लोग बेहिस हो गए हैं। I beg to differ. आखिर अंग्रेजों के, अयूब खान के, भुट्टो के, ज़ियाउल हक के, सभी आमिरों और जालिमों के खिलाफ तहरीकें इन्हीं लोगों ने चलाई थी। इतना कुछ करने के बाद जब कुछ बेहतर नहीं हुआ तो लोग शायद थक गए हैं। लोग भी क्या करें जब कोई लीडर ही नहीं है। लीडर भी तो आप ही बनाते हैं। हम अच्छा ये बताओ कि अगर तुम्हें सदर बना दिया जाए तो तुम क्या करोगी? वाह, मैं और सदर, ओके। मेरा सहरुखी एजेंडा होगा, तालीम आम करो, इदारे कायम करो और उनकी परवरिश करो, मिडिल क्लास मजबूत करो। हार्ड लिस्ट। मैं मिल रही हूँ शाम को जनरल अशरफ से, कोई मैसेज? नहीं, बस जरा बच के रहना। जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे
कोई हमारे मुल्क को, हमारी फौज को और हमारे लोगों को तबाह बर्बाद किए दे रहा है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। अभी खत्म नहीं हुआ तुम्हारा काम? अभी कहाँ, अभी तो पब्लिशर के पास जा रहा हूँ, ये चैप्टर ड्रॉप करना बहुत जरूरी है। तुम कहाँ हो? मैं तो जनरल साहब से मिलने जा रही हूँ, चलोगे? मैं जाऊंगा तो सही, लेकिन लेटर इन द डे। लगता है इस दफा हम ही इन्हें बिजी रखेंगे। अच्छा है ना, कभी कभी तो मौका मिलता है। उसके बाद मिलते हैं शाम को लाइब्रेरी में। चलो ठीक है, फिर बात करते हैं। ऑलराइट, I'll talk to you. तो सर, अब लोगों को ये धोखा दिया जा रहा है कि मीडिया आजाद है, सेंसरशिप का कोई वजूद नहीं और आपसे ज्यादा इंसाफ पसंद और लिबरल डिक्टेटर की इस तारीख में कोई मिसाल मौजूद नहीं। भाई मैं डिक्टेटर वगैरह नहीं हूँ। पहले मैं चीफ एग्जीक्यूटिव था और अब सदर हूँ, और चीफ एग्जीक्यूटिव और चीफ ऑफ, खैर छोड़ो इसे। बस इतना ही काफी है कि मैंने कह दिया मैं डिक्टेटर नहीं हूं। मैंने तो सबको हर तरह की आजादी दे रखी है। जबरदस्ती? हाँ, क्या करें, जब घी सीधी उंगलियों से न निकले तो क्या करें। गन पॉइंट पर? आजादी की कीमत होती है बीबी, जो जिस तरह भी अदा करे। जो आजादी कबूल करने से इनकार करता है उसे सबक सिखाना पड़ता है। तो सर, आप अपने इन सिविल और फौजी घोड़ों गधों को लगाम क्यों नहीं देते, खास तौर पर ISPR के गंजे फरिश्ते को, जो दयानतदारी से बात करने वाले प्रोग्रामों और जरीदों पर चढ़ दौड़ते हैं? लोग जो कहना चाहते हैं सर, उन्हें कहने की इजाजत दीजिए। उन पर दहशतगर्दी, बगावत, साजिश या गद्दारी के मुकदमे मत बनाइए। आपको फौरन ही पता चल जाएगा अपनी इस सेल्फ प्रोक्लेम्ड अजमत का। मुझे मालूम है मैं सच्चा हूँ, मैं इन सब की बकवास क्यों सुनूं? अगर आप सच्चे हैं सर, तो कौम आपके कदमों में आंखें बिछा देगी। आप हीरो बन जाएंगे, हीरो। और तुम्हारे ख्याल में अब क्या कर रहे हैं ये बेवकूफ? आंखें बिछाना उनकी पुरानी आदत है, जो इन्हें जितना ख्वार करता है उतने ही उसके आगे बिछते चले जाते हैं। बाय द वे, ये अहमद क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो पहले एक इंटरनेशनल हीरो। क्या नाच थी, क्या बच्ची है यार। हाँ यार, याद आया, यूएनओ ने लाइबेरिया में तुम्हारे आर्मी के काम की बहुत तारीफ की है। देखी, मेरी फौज की लाजवाब कारकर्दगी। फिर भी मेरे स्टूपिड लोग मुझे अच्छा नहीं समझते। स्टूपिड है ना? मालूम था ना, फौज की कारकर्दगी में तो कोई शुबा ही नहीं। पूरी दुनिया में पीस रेस्क्यू मिशंस में अपने झंडे गाड़ चुकी है। ये तो कुछ बददयानत और बद किरदार अफसरों ने इसका इमेज और किरदार दोनों बर्बाद करके रख दिया। दयानतदार अफसर और जवान दोनों फ्रस्ट्रेटेड हैं कि क्या करें, कहां जाएं। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। और जब बहुत सी गंदी मछलियां मिल जाएं तो बड़े से बड़ा तालाब भी नहीं बच सकता। बकवास बंद करो तुम लोग, सारी फिल्म का मजा किरकिरा करके रख दिया। वो देखो, ऐसी बच्ची, मैं फौज में ऐसी बच्चियां बनने के बारे में सोच रहा हूं और तुम लोग पक पक किए जा रहे हैं। लेकिन एक बात है, एज अ मीडिया पर्सन, अ मॉडर्न डे जर्नलिस्ट, मैं समझती हूँ कि
आर्मी की गैलेंट्री, वेलोर एंड शेवलरी की ट्रेडिशंस तो अपनी जगह पर है। हैं, बिल्कुल हैं भाई, ऑब्वियसली। तुम एक वेल एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन की बात कर रही हो, जबकि हमारे यहाँ एक भी इदारा ऐसा नहीं है जो सियासतदानों और लीडरों को तरबियत दे। मसला ये है कि हमारे इदारे मजबूत नहीं। मजबूत? फौज के अलावा हमारे यहाँ इदारा ही कोई नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ रिसोर्सेज और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ 10,000 से ज्यादा करोड़पति हैं, 10,000 से ज्यादा। ये लोग क्यों इकट्ठे होकर ऐसे इदारे नहीं बना सकते जहां पर सियासतदानों, लीडरों को तरबियत दी जाए, ताकि अच्छे सियासतदान और अच्छे लीडर पैदा हों। काश किसी तरह ये खानदानी सियासत, पुश्तीनी लीडरी और मजहबी गद्दी नशीनी का दौर खत्म होता। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें ये चॉइस दी जाए कि तुम्हारे यहाँ अनट्रेन्ड चोर चोरी करें या ट्रेन्ड और प्रोफेशनल डाकू डाका डालें, तो अनट्रेन्ड चोर तो जो उसके हाथ आएगा उठाकर भाग खड़ा होगा, बल्कि हो सकता है अपने अनाड़ीपन की वजह से पकड़ा भी जाए। जबकि ट्रेन डाकू को क्योंकि सारे गुर अच्छी तरह आते होंगे, वो तसल्ली से सारी प्लानिंग करेगा और एक एक दिन का समेट कर ले जाए। यही मसला है। जब बात फौजी और सियासतदानों की आती है तो हमारे पास चॉइस सिर्फ ज्यादा बुरे या कम बुरे की है। क्या मतलब, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि सियासतदान जर्नैलों से ज्यादा बेहतर है? मैंने ज्यादा बुरे या कम बुरे की कहा, अच्छे या बुरे की नहीं। मेरा ख्याल था कि एजुकेटेड और वेल इन्फॉर्म्ड होने की वजह से तुम दूसरों से बेहतर सोच रखती हो, खास तौर पर दूसरे मुल्कों में रहने वाले देसियों से। कैसे? भाई देखो ना, जब मार्शल लॉ आता है, चंद दिनों के लिए एयरपोर्टों पे तूफान बदतमीजी रुक जाता है जो सिविल हुकूमत के दौर में चल रहा होता है, ठीक है ना? और उससे हमारे लोग समझते हैं कि सब ठीक हो गया। तो वाह, जान में जान आती है, वरना तो गिद्धों की तरह टूटे पड़ते हैं एहलकार हर तरफ से। एक तूफान बदतमीजी मचा हुआ होता है। बिल्कुल यही बात है, और सियासतदानों की इन्हीं हिमाकतों की वजह से ये फौजी जर्नैल फायदा उठाते हैं और चंद दिनों के सुकून में हम उस तूफान को भूल जाते हैं जो हमें बूटों तले रोंदने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। एक बड़ी लंबी चौड़ी ईमेल किसी ने भेजी है, बड़ा कुछ लिखा है इसमें, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि हमारे ज्यादातर सियासतदान इंतहाई बेगैरत, बेजमीर, बेशरम, बदनीयत और बददियानत है। हंसने की बात नहीं है, शर्म का मकाम है। बात तो बिल्कुल सही है ना, लेकिन असेंबलियां चलेंगी तो ये गन निकलेगा ना भाई। अच्छे लोग फिर ही सामने आएंगे जब असेंबलियां चलेंगी, वरना तो ये तो वही सियासतदान है जो 58 सालों से जर्नैलों के हाथों में खेल रहे हैं। जाहिल और बेवकूफ। लेकिन जब हम सभी ऐसे हैं तो फिर सियासतदानों से क्या गिला? अच्छा, मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें बीबी ने नोट लगाए हैं या गोंगलू ने? दरअसल हम लोग इतने धोखे खा चुके हैं कि लगता ही नहीं कोई लालच के बगैर भी अच्छा काम कर सकता है। और तुम ये सोचो कि आज तक फौज की गर्दन नहीं तोड़ी गई। अगर असेंबलियों की तरह हर 2-3 साल बाद फौज को भी 10 साल के लिए उसकी गर्दन तोड़ दें, फिर पता चलेगा कि कितने अच्छे और प्रोफेशनल जर्नैल सामने आते हैं। खैर, वो तो अब भी कितने। हाँ, लेकिन उसकी और वजह है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। मेरे ख्याल में जब तक हमारी मिडिल क्लास में से पढ़े लिखे और मेहनती लोग सामने आकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते, हमारे मसले तो हल हो ही नहीं सकते किसी तरह। बिल्कुल ठीक है, और इन जर्नैलों को भी जिनके मुंह को इक़्तिदार का खून लग चुका है, मैं यही मशवरा दूंगा कि अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियां पूरी करने की तरफ तवज्जो दें तो सभी का भला होगा। वरना तो हमारे पास वही जवाब है जो किसी ने ज़ियाउल हक मरहूम को दिया था। मरहूम नहीं, शहीद कहो। ज़ियाउल हक जहाज फटने से मरा था, वो शहीद है। उसने भुट्टो को फांसी दी थी, वो भी शहीद है। जिन लोगों ने ओजड़ी कैंप में चांदमारी करवाई थी, वो भी शहीद है। और जो लोग इस जालिमाना हादसे का शिकार हुए थे, उन बेचारों का कुछ पता नहीं है।
تم جیسے جعلی خیر خواہوں نے اس قوم کو کنفیوز اور ذہنی طور پر اپاہج کیا ہوا ہے۔ خدا کے لیے تعمیری کاموں کی طرف توجہ دو، نکلو ان جھوٹے ڈھکوسلوں اور بھول بھلائیوں سے۔ So tell me, isn't Islam a religion of tolerance, patience, helping the needy and poor, and sharing the wealth with all members of society? Yes, Islam is the best religion on the face of earth. I represent my Islam. I am a soldier. Cheers. To protect Islamic ideology and frontiers with my enlightened moral action. Then why are so many Muslims in the world engaged in terrorism? Why? نہ جانے آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں سر؟ شاید اس کی وجہ مغربی ممالک کا میڈیا اور ان کی نقالی کرنے والا ہمارا میڈیا ہے۔ Media. ٹیموتھی میکوے، یونابامبر، ڈیوڈ کوریش، کلس ان یورپ اینڈ امریکہ، IRA، ان سب کو کوئی ٹیررسٹ کیوں نہیں کہتا؟ امریکہ میں آئے دن سیریل کلرز بے شمار لوگوں کو مارتے رہتے ہیں، انہیں کوئی ٹیررسٹ کیوں نہیں کہتا؟ آپ بھی نہیں، آپ تو خیر ابھی آئرلینڈ کی ہسٹری میں انفیکٹ سب سے بڑا ڈاکہ پڑا، $40 ملین سارے اشارے IRA کی طرف جاتے ہیں۔ کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ عیسائی دہشت گردوں نے بینک لوٹا ہے تاکہ وہ عیسائی حکومت قائم کرنے کے لیے جہاد کر سکیں۔ اور یہ انڈین لاڑے جو فلموں میں پاکستان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اوے چریے، وہ تو پاکستان لونڈے بھی کرتے ہیں۔ کچھ بھی ہو، your movies are provocative and hostile. Yeah, our movies are hostile and yours are docile. As a matter of fact, our media, and that includes yours too, they are doing a disservice to our people and our interests. آپ کی انٹرسٹ کو تو شاید نہیں کر رہا ہوگا، لیکن پھر بھی آپ بڑے بھائی ہیں، آپ کا ملک بڑا ہے، آپ کی انڈسٹری بڑی ہے، آپ کا میڈیا بڑا ہے۔ ہمارا تو صرف وہی بڑا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، آئی گیس کچھ بھی بڑا نہیں ہے۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ دونوں ملکوں کے اہم لوگ سامنے کیوں نہیں آتے؟ دونوں ملکوں کے دورے کر کے لوگوں کو ایجوکیٹ کیوں نہیں کرتے؟ امن قائم کرنے میں مدد کیوں نہیں کرتے؟ بھائی پروفیسر صاحب، آپ ہمیں کسی کو اس ملک میں رہنے بھی دو گی یا نہیں؟ جب ہم جنرل لوگ یہ چاہتے ہی نہیں کہ امن ہو جائے تو وہ کیا کریں گے؟ یہ سب گھونسلے ہیں، بہلا رہے ہیں ہم انہیں۔ جب کوئی جنرل میڈل لینا چاہے گا تو ون فائن مارننگ اٹھ کر دوسرے پہ لشکر کشی کر دے گا۔ یار ایسی بات نہیں، تم ایک بار، صرف ایک بار اکیلی مدھو بالا کو ادھر بھیج دو تو میں امن قائم کر کہتا ہے مدھو بالا تو کب کی گزر چکی، کسی اور کو بھیجو، کچھ اور بھیجو، مدورئی، ایشوریا، ہماوالی یا پھر
Sridevi, Rani, General Rani. तेरी नानी वो भी गुजर गई. तू भी रानी, मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी? अब थोड़ा सोबर हो जाओ, पूल खेलते हैं. चल छोड़, बहुत हो गया. मैं सोबर हूँ, ट्रस्ट नहीं, मैं सोबर हूँ. पता है, मैं श्रीलंकन को अब्राहम लिंकन का बैंड समझता हूं. छोड़ यार. इब्राहिम लिंकन, वो जिसने गुलारी को बचाया था. इब्राहिम नहीं, वो है चाय किस्म की जनरल. ये बता, दूसरी किस्म के जनरल भी होती है क्या? और आप श्रीलंकन को श्रीदेवी की फुफ्फी समझते होंगे. लो कर लो बात. हम मुल्क और फौज दोनों की काया पलट के रख देंगे. आप क्या हल्दी और चंदन का उपटन लगाकर कौम की काया पलटेंगे सर? आखिर अभी तक आपने किया ही क्या है? पॉलिसी किसी की, असलाह किसी का, टेक्नोलॉजी किसी की. क्या मतलब टेक्नोलॉजी किसी की? अभी जो नया मिसाइल टेस्ट किया था. कब? चंद माह पहले. कब? मैं और कब भूल गई? यही तो. आपके ये सारे मिसाइल आखिर बजट मिसाइल के आसपास ही क्यों चलते हैं सर? बजट तो आज खुद एक न्यूक्लियर बॉम्ब है जो आप बनवाकर अपने सिविलियन पिट्ठों के हाथों चलवाते हैं. तुम सिविलियन उल्टी सीधी बातें सुन लेते हो इधर उधर से और हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हो. बस हाथ तो धो लेते हैं कम से कम. और वैसे भी सर, हमारे हाथों पर मेहनत की मट्टी और पसीना होता है. अपने बेगुनाह हम वतनों का खून नहीं होता. ये लो, प्रोफेसर आ गया. ये तुम्हें बताएगा हमारी हुकूमत की प्रोग्रेस के बारे में. आपकी हुकूमत की प्रोग्रेस? मैं तो सर सिर्फ यही कह सकता हूं कि ये सब किसी आका का करम है प्यारे, कि बात अब तक बनी हुई है. सर आपके लिए ड्रिंक कर लाऊं कुछ? ये क्या बेहुदा कम्युनिटी है? यहां तो तुम लोग खुद ही वेटर्स और टेबल बॉय बने हुए हो. इसीलिए मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं. सर मैं बात आपसे पूछ सकता हूं क्या? हमारे मुल्क अरबों डॉलर असले खरीदने पे खर्च कर रहे हैं. उसका फायदा कौन उठाता है? मुल्क जिसका कभी दिफा ही नहीं किया जा सका, अवाम जिन्हें ना इज्जत की रोटी मैसर है, ना सर छुपाने की जगह और ना ही तालीम. भाई तालीम तो हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है. और अपने आका बुश की तरह आपका नारा भी यकीनन नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड होगा सर. आप भी जंग के शोले भड़काकर तालीम की रोशनी फैलाएंगे. दुश्मन जंग करें तो क्या हम हिजड़ की तरह हाथ पे हाथ धर के बैठे? जंग लड़ने से कोई ज्यादा जवान मर्द नहीं बन जाता जनरल साहब. ये दुश्मन क्या है? इंडियंस पाकिस्तानियों को इल्जाम देते हैं और पाकिस्तानी इंडियंस को. दोनों के अवाम लड़ना नहीं चाहते. अगर जर्नैलों, सियासतदानों और गैर मुल्कियों की वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो तो आप कभी भी जंग का नाम ना सुने. कौम का बजट उड़ा देना कहां की मर्दानगी है सर? नॉनसेंस. फौज का एक हिस्सा बजट में और बस. और वो भी दूसरे महकमों की तरह सिविल हुकूमत और पार्लियामेंट तक. एक हिस्सा चे पार्लियामेंट चे सिविल हुकूमत का शोरबा. अब तो बेशुमार ऐसे रिसोर्सेज हैं सर जो बजट तो क्या किसी भी रिकॉर्ड में नहीं आते. और फिर आर्मी की फाउंडेशनें, कोटे और अब रियल स्टेट अंपायर. अब तो फौज से बड़ा ना कोई
रियल एस्टेट एजेंट है और ना ही कोई जागीरदार। अब तो लिटरली पूरा मुल्क फतह कर लिया है आपने। गरीब लोग अपना पेट काट काट कर आपको कर्ज उतारने, कश्मीर आजाद कराने के लिए पैसे देते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी शऊर नहीं कि उससे पहले तो पाकिस्तान और इंडिया को आजाद कराना जरूरी है। लेकिन एक बात याद रखें सर, जिस दिन उन्हें इस बात का एहसास हो गया, वो आप और आपके हवारियों को बहरे हिंद में डुबो देंगे। मैं ऐलान करते हुए इंतहाई मसरत महसूस कर रहा हूं कि इस साल हम अमेरिका और इंग्लैंड से इंतहाई जदीद असबाब नहायत सस्ते दामों खरीद रहे हैं। और इन दोनों मुल्कों ने कमाल मेहरबानी से और जनरल साहब के खुसूसी तल्लुकात की वजह से हम पर से न सिर्फ असला ना खरीद सकने की पाबंदी हटा दी गई है, बल्कि इस डील के सिलसिले में मजीद ताउन का वादा किया है। एक मिनट प्लीज, एक मिनट। हम तालियां बजाने में बहुत तेज है। 60 साल हो गए तालियां बजाते बजाते। हमारा वजूद, हमारा जमीन, हमारा किरदार, हमारा मुस्तकबिल सब मर रहे हैं, और हम उनकी ताली बजाए चले जा रहे हैं, बजाए चले जा रहे हैं। जरा कुछ सोच समझ भी लिया अपने ताली बजाने से पहले खुदा के लिए। हाँ कुरैशी बोलो, कितने? 7 मिलियन? नहीं 10 में डन कर लो। क्या नहीं मानते? तो कहो कि हम महराज फ्रांस से ले लेंगे, आप भी 10 मिलियन से ज्यादा दे रहे हैं। हाँ फाइन। हाँ स्विस अकाउंट में। मेरे नहीं बेवकूफ, मेरे बेटे के सुसर के। बकवास करता है। हाँ, जनरल समीर, व्हाट अबाउट हिम? हाँ यही है तो क्या हुआ? नहीं उसका इस डील से कोई ताल्लुक नहीं है। वो भूखा मरेगा साला और दूसरों को भी मरवाएगा। ओके लिसन, आई वांट यू टू सॉर्ट आउट अबाउट दिस प्रोफेसर गाय। ही इज अप टू समथिंग। ना सिर्फ उसकी जुबान बहुत चलती है, बल्कि मुझे लगता है वो किसी लंबी मार पर है। हाँ बताओ मुझे। क्या स्टोरी है प्रोफेसर की? क्या बैकग्राउंड है इसकी? स्टोरी क्या साहब, कहानी है। भाई बड़ा बीबा बंदा है। ओए बार बार भाई नहीं कहो है, मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है। माफी दे दो साहब। भाई आप इसका बैकग्राउंड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है साहब। समझो मशीन गन में 12 बोर का बारूद डाला है साहब। तेज भी है और खतरनाक भी। अच्छा ज्यादा बकवास नहीं करो, काम की बात करो। काम की बात ये है साहब कि इसका वालिद ऊपर से आया था। ऊपर से साहब, पहाड़ शरीफ से, उधर अफगानिस्तान शरीफ से भी आगे से साहब। और अम्मा साहब का फैमिली इंडिया शरीफ से हिजरत करके आया था साहब। ये क्या तुमने शरीफों का ढेर लगा दिया भाई? सर शरीफों का ढेर तो जनरल साहब ने लगा दिया, हम तो उनको इकट्ठा करने में लगा था साहब। अच्छा बकवास मत करो। आप अफसर लोग हैं साहब, जो दिल में आएगा वो करेगा। हम आपको एक बात बोलता है साहब, रंग और नस्ल की वजह से किसी को अच्छा बुरा नहीं समझना चाहिए। इंसान का अमाल इसे अच्छा या बुरा बनाता है साहब। यूं तो हरकतों की वजह से फौज में बड़ा दोगला है साहब।
यू ब्लडी, तुम फौज को बुरा कह रहे हो? गंदी नाली के कीड़े, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। अगर तुमने इतना अरसा मेरी खिदमत न की होती तो मैं खड़े खड़े तुम्हारा कोर्ट मार्शल करवा देता। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। यही तो प्रॉब्लम है साहब, हमने आपका इतना खिदमत किया और आपने हमें गंदी नाली के कीड़े से ज्यादा नहीं समझा। चलो कुरैशी, आज तुम्हें स्टूडियो के अंदर बिठाता हूँ। सर, मैं वहां क्या बोलूंगा, मुझे तो कुछ आता जाता ही नहीं सर। तो मुझे क्या आता जाता है? सीखो, ये दाव पे सीखो स्टूपिड। ताकत की कोई कमजोरी नहीं होती, ये नॉलेज वालेज की जरूरत तो प्रोफेसर और दूसरे सरफिर लोगों को होती है। कोई कुछ पूछे तो दबका कर बिठा दो, ना समझे धमकी दो, फिर भी अगर कोई मस्ती करे तो उसके घर वालों को हरास करो। ये तो मामूली बातें हैं, सीखो स्टूपिड, सीखो। सर, आपकी तो बात ही कुछ और है। आपकी जगह पे सर कोई दूसरा जचता ही नहीं है सर। बहुत अच्छे जनरल बनोगे। इसीलिए तो ये सब सिखा रहा हूं तुम्हें। मुझसे नहीं सीखोगे तो क्या जहन्नम के फरिश्ते आएंगे तुम्हें सिखाने? सीखो। अरे साईं, काम किए जा रही है, सारे लोग तो चले गए। बहुत मेहनती है। असल में मेरा प्रोग्राम शुरू होने वाला है, इसलिए मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर लूं। ओह अच्छा 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 अच्छा, क्या प्रोग्राम है? हैं? एक बात बताइए मियां साहब। माफ कीजिएगा, मेरा नाम मियां नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, हरकतें तो वैसी ही हैं। मियां नहीं होंगे तो चौधरी होंगे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो मखदूम, पिगाड़ा, शेरपाओ, खान, अरबाब या लगारी होंगे, क्या फर्क पड़ता है? बुक्ती, मजारी, मिंगल, मौलाना या भाई होंगे, क्या फर्क पड़ता है? हमें क्या फर्क पड़ता है? आखिर फर्क ही क्या पड़ता है? हमारे लिए तो आप सभी एक जैसे हैं, आप सबकी ख्वाहिशें एक जैसी हैं, आप सबका किरदार एक जैसा है। वैसे भी शेक्सपियर ने कहा था, वर्ड्स इन अ नेम। उसने तो इज्जत से कहा था बहन जी, उन्होंने गुलाब के लिए कहा था। हाँ, हमने भी तो आपको इज्जत से रखा है, गुलाब के फूलों की तरह रखा है या नहीं? अपना खून दे दे कर आपको सैराब किया है, अपना पेट काट काट कर आपको खिलाया है, अपनी इज्जत नीलाम कर करके आपका वकार बुलंद किया। अच्छा बाबा अच्छा, आप तो मशीन की तरह बोले जा रही हैं। हाँ, पुर हूं यूं शिकवे से, राग से जैसे बाजा, एक जरा छेड़िए फिर देखिए क्या होता है। अच्छा, बाजे बाजे का प्रोग्राम है। हाँ अरे पहले कहते तो मैं कुछ चिकन विकन, एक बड्डी बोतल शहद की लेता आता, उसके बगैर खाक मजा है। हाँ हाँ, हम स्टूडियो पहुंच गया हूँ जनरल शरफ का इंटरव्यू करने के लिए। बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। अरे साईं,
आपने ये इंडियन और पाकिस्तानी फौजियों को इकट्ठा कर दिया है? अरे हमसे तो कहते हैं इंडियन से बड़ा खतरा है। ये बस कहते ही हैं। खतरे वतरे की बातें तो सिर्फ हमें डराने के लिए, वरना आपस में तो ये मौज मस्ती करते हैं। अरे हमसे कहते हैं अंग्रेज से प्यार करो, इंडियन से नफरत करो। हाँ। ये सब इनका गेम प्लान है। अगर इंडिया पाकिस्तान में टेंशन नहीं होगी तो इतनी बड़ी बड़ी फौजें कैसे रखेंगे, और फौजें नहीं होंगी तो इनका क्या बनेगा? अरे साईं, फिर भी आपने तो दो कौमी नजरिए की नफी करके रख दी है। मैं क्या नफी करूंगा भाई? आपने खुद ही नफी करके रख दी अपने वजूद की बुनियाद की। आपने इतनी कौमें बना ली है। आपका दो कौमी नजरिया तो 1971 को ही खत्म हो गया था, जब आप लोगों की हरकतों की वजह से बांग्लादेश बना था। सर जी, आप हमसाया मुल्क से हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। कोई भी गैरतमंद ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, इसीलिए तो आपसे बात कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मुझे इजाजत दीजिए, मेरे प्रोग्राम का टाइम हो रहा है। देखो भाई, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था उन्हें आप लोगों ने उज़्वे मोतल की तरह निकाल फेंका। आज भी वो लोग गैर यकीनी मुस्तकबिल के साथ पाकिस्तान आने की आस लगाए बैठे हैं, और आज भी आप उन्हें सर छुपाने की जगह देने पर आमादा नजर नहीं आते। वो तो पुरानी बातें हैं साहब। और अब आपके चंद सरपिरे जनरलों ने बलूचिस्तान और सरहदी इलाकों में मकामी लोगों की नस्ल कुशी शुरू कर रखी है। कभी अंग्रेजों ने भी अपने दुश्मन को इतनी बेरहमी से नहीं मारा था। ये तो बिल्कुल नई बात है। सर जी, क्या करे, फौज से डरना पड़ता है। मैं तो हैरान हूँ कि आप ऐसे खुलेआम कैसी बातें कर रहे हैं। भाई, हमें किस बात का डर? तुम्हारी फौज है, तुम्हें मारती है, हमारी तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखती। अब तो उन्होंने डिफेंस सोसाइटियां बॉर्डर तक फैला दी हैं, वो उनकी फिक्र करेंगे। अब वो कैसे जंग कर सकते हैं? ठीक है साहब, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, क्यों मेरी नौकरी और मेरे मुस्तकबिल के पीछे पड़े हैं आप? हाँ, अरे हमारे जनरल साहब ने सुन लिया तो मैं तो हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाऊंगा। मेरा तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। गद्दारी का मुकदमा बना देंगे मुझ पर। हाँ, आपकी बात तो ठीक है। कोई भी डिक्टेटर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन कभी तो आपकी आवाम की सोई हुई तकदीर जागेगी। जब जागेगी तो उसे भी निपट लेंगे। अब थोड़ा सा माल तो कमाने दे, थोड़ी सी मौज मस्ती कर लेने दे। छोटी सी जिंदगी है साहब। करण, तुम? What the hell are you doing here? मुझे तो कहा गया था वहां बच्चियां होंगी। सर, बच्चियां आज बची हुई हैं। बदकिस्मती से आज आपका मेजबान नहीं हूं। ओह शिट, तुमसे कब जान छूटेगी? जब मैं तुम्हारा सीईओ था तो जिंदगी मुसीबत में थी। जब तुम कुरैशी के सीईओ बने तो मैं फोर्स कमांड कर रहा था। उस वक्त भी तुमने जिंदगी अजाब में डाले रखी, अपनी भी, उसकी भी और मेरी भी। ना खुद जीते हो, ना हमें जीने देते हो। कितनी बार का है, छोड़ो ये समाज सुधार की अहमकाना बातें। आओ मिलकर ऐश करते हैं। मगर तुम तो सदा के सर। हम जैसे सर फेरे खत्म नहीं होंगे जनरल साहब। मेरा ख्याल है आजकल हमारे सितारे टकराए हुए हैं, वरना आप तो जानते ही हैं कि मैं आपको और आप मुझको कितना देखना पसंद करते हैं। हाँ,
ये सितारों वाली बात कुछ सही लगती है। चलो देखते हैं तुम्हारी बकवास और हमारी बर्दाश्त। तुम्हारा हौसला पहले खत्म होता है या हमारा नशा? लिसन, बोतल वाला कोई सीन आगे नहीं जाएगा, स्माइल वाला कोई सीन पास ऑन नहीं होगा, और सारी टेप्स पहले मैं खुद चेक करूंगा और उसके बाद आप उसको ऑन एयर करेंगे। ऑलराइट, दैट्स एन ऑर्डर। कुछ शुगर रहेगा। I'm not so sure about that, sir. Let's see what happens. ख़वातीनो हज़रात, खुशामदीद। हमने आज पाकिस्तानी जनरल अशरफ को इनवाइट किया है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं जनरल साहब। At this point, I would like to invite Sarah, a prominent journalist, to the show. Sarah? बहुत टैलेंटेड हो भाई, बड़ा नाम है तुम्हारा। तुम्हें मिनिस्टर ना बना दे या फिर प्रेसिडेंट लगा देते हैं? आपसे सवाल है कि सियासतदानों और फौजियों की मुजरिमाना गठजोड़ का इससे ज्यादा सबूत क्या हो सकता है जो इस वक्त हमारे मुल्क में राइज है? कर्नल, तुम तो फौज के आदमी हो, एक सोल्जर। तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे तुम्हारी वफादारी पर हरफ आए। जनरल साहब, अनलाइक यू, मेरी वफादारी सबसे पहले अपने लोगों से है। आई एम श्योर तुम अपने फेल्ड कैरियर की फ्रस्ट्रेशन आर्मी के खिलाफ बातें करके निकालते हो। जनरल साहब, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं फौज के बेहतरीन अफसरों में से था। मुझे तो फौज से जान छुड़ाने के लिए सिफारिश करवानी पड़ी थी। कर्नल साहब, हमें भी ढूंढ दें ऐसी सिफारिश। मैं फौज के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो इन लालची अफसरान के खिलाफ बात करता हूं जो मुल्क और इस इदारे को बदनाम कर रहे हैं। तुम लोग पाक फौज को बदनाम करने पर तुले हुए हो। तुम लोग अमेरिका, इंडिया और इसराइल से माल लेते हो और उनके इशारों पर चलते हो। फौज के पीछे हाथों के क्यों पड़े हुए हो? इन सियासतदानों से पूछो इन्होंने क्या किया अब तक। सर, वो तो कहते हैं हमारे पास चॉइसेस ही बहुत कम है। जेल जाओ या वजीर बनो, गद्दार कहलाओ या मुल्क को एशियन टाइगर बनाने के झूठे वादे करो। अच्छा सर, आप हमें ओजड़ी कैंप के बारे में कुछ बताइए। ओजड़ी कैंप? वो तो एक हादसा था। हादसा था तो फिर बैंक अकाउंट्स कैसे भर गए? एक को 55 करोड़ डॉलर और दूसरे को 75 करोड़ डॉलर मिले। बकवास, सब बकवास, दुश्मन का प्रोपेगेंडा। सर, कितने जर्नैलों का कोर्ट मार्शल हुआ इतनी बड़ी और हलाकत अंगेज मुजरिमाना गफलत पर? कितने वजीरों और मुशीरों ने इस्तीफे दिए? मर तो गए सारे, और क्या चाहती हो तुम? फौज ने एक इदारे के तौर पर क्या किया? जुर्म करना तो बड़ी बात है, जुर्म को छुपाने और उसकी तफ्तीश ना करने पर कौन से कोर्ट मार्शल हुए? अच्छा छोड़ो भी, अब इससे बड़ी बड़ी बातें हो रही। तुम क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो? यही तो बात है, कुछ अरसे बाद हर इशू गड़ा मुर्दा बन जाता है। तो तुम तारीख उठाकर देख लो। तारीख क्या देख लें, वो भी तो आप ही की लिखवाई हुई है सर। तो तुम खुद लिखवा लो अपनी तारीख। जी हाँ जनरल साहब, इस वक्त जो तारीख हम लिखने जा रहे हैं इसमें आपको वो सब हिसाब चुकाने होंगे जो आप पर और आपके पेशवा जनरलों पर ड्यू हैं। जनरल साहब, हमारे एक व्यूअर ने आपके लिए ईमेल का नजराना भेजा है, ये पंजाबी में है। कुंडी खड़कनी ते टी हो जाना है, किनू पता हूं की हो जाना है। अपने पजामे ते लंगोटियां संभाल लो, वर्दी ले जानी ते पी हो जाना है। फजूल बकवास, कोई पीवी नहीं होनी। ये क्या बकवास है? कौन लोग हैं ये? बंद कराओ ये ऐसे बयान। सर, ये तो दूसरे मुल्कों के लोग हैं। कौन से मुल्क में हैं ये लोग? अभी बात करता हूं गुस्सा से। वो सब नहीं है
चलो तो फिर कोंडी से बुलाओ। कोंडी भी नहीं है, किसी और से बुलाओ। ये बकवास बंद होनी चाहिए हर सूरत। क्या अपने मुल्क की शहरी पे सेंसर नहीं लगा सकते? जनरल साहब, ये सेंसर वेंसर हमारे जैसे कमजोर मुल्कों पर घटिया उपकरणों के जरिए लगाए जाते हैं। अगर आपके आका चाहें भी तो अपने लोगों पर नहीं लगा सकते। अपने मुल्क में होते तो बताता मैं क्या करता। वहां पर तो आपने कयामत बर्पा कर रखी है। You This is it. We are taking this place over. क्या मतलब we are taking this place over? तुम्हारी बकवास बंद नहीं होती? I'm really sick of it. तुम लोगों को ढील देते जाओ, सर चढ़ते जाते हो। Take him away. You can step away from this seat. ख़वातीनो हज़रात, ये स्टूडियो गद्दारों के कब्जे में था, जिन्हें हम पे तनकीद करने के सिवा और कोई काम नहीं था। यहां के हालात इतने खराब हो चुके थे कि इसके सिवा कोई चारा नहीं बचा था कि हम कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते। इसे बीच रखो जरा। लेकिन आप लोग इत्मीनान रखिए, हम यहां ज्यादा देर रुकने वाले नहीं। यह सब नजरिया जरूरत के तहत हुआ है और एक अहम जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। हम इंशाअल्लाह 90 दिन के अंदर अंदर 90 मिनट के अंदर अंदर हकदार लोगों को यह जिम्मेदारी सौंप के वापस अपनी बैंक को घरों को चले जाएंगे। What's going on here? This colonel guy has always created problems. I don't know what he's doing here now. Somebody tell me. We want to make sure this guy doesn't create any problem for you. How will you go about doing that? I'm not sure, but we will find a way. A way? There is no way. If there was a way, we would already have found it. Trust me, you are not us. We got rid of much more stronger and much more capable people. But exactly how? And how long is it going to take? Whatever long it's going to take to make you happy. But how? I don't know how. Oh. Maybe we declare him a terrorist. Yeah, we declare him a terrorist. Wait a minute. A terrorist? Just because this guy creates problems for us doesn't mean we can label him as a terrorist. He's a free, law-abiding citizen. Let me think over it. Can you not to worry at all and leave it to me? I will find a way. Maybe we extradite him to USA and get it done there. Well, we don't just give our citizens away to the USA. You don't? We do that all the time. Then do gladly. Well, maybe you have too many citizens to give away. Yup. We have too many. Well, that's why you're not a sovereign and independent nation. Yeah, whatever. Don't get into that. I don't want
you to be leader of 5 people for freedom and democracy. Well, just don't get me into trouble. Take as long as you need, do whatever you like. You can stay as long as you want. Can you not worry at all and leave that to me? Definitely, I will find a way. If nothing works, we will take care of this guy. In fact, in counter. General, you keep forgetting that we're in Canada, not in your country, which you bravely took over by killing your own people and taking them hostage. Okay. Let me think over it and find a way. Be sure everything will be okay. If you don't do what we want, there's going to be a big problem. कहाँ फंस गया? काश ये सब कुछ कनाडा की बजाय अमेरिका में हुआ होता. What's up? क्या हुआ? बैठ. हमारे मोहल्ले में एक लड़का था, यूनुस. उसके वालिद साहब फौज में सिपाही थे और जंग लड़ते हुए शहीद हो गए थे. फिर वो लोग गांव चले गए और यूनुस अपनी तालीम जारी न रख सका. काश वतन के लिए लड़ने वालों, स्पेशली शहीदों की फैमिलीज की माली परेशानियां हुकूमत दूर कर सकती. कर तो सकती है अगर वतन के लिए ना लड़ने और ना मरने वाले इसका खून चूसना बंद कर दे. हाँ, जब ऐसा कुछ होता है तो ये एक गरीब मुल्क है का रोना शुरू कर देते हैं. चंद बदनीयत जर्नैलों की नेवर एंडिंग हिर्स और हविस की वजह से बेचारे सिपाहियों और जवानों के लिए कुछ भी नहीं बचता. फिर पता चला कि यूनुस भी फौज में भर्ती हो गया. अभी हमारे फील्ड जर्नलिस्ट शुजा का फोन आया था. उसने बताया कि यूनुस काफी दिनों से अरेस्टेड था और उसका कोर्ट मार्शल हो रहा था. व्हाट? क्या कह रही हो? बज़ाहिर तो उस पे कुछ उल्टे सीधे इल्जामात हैं, लेकिन असल में उसने कबायली इलाकों में जाकर अपने ही मुल्क के बाशिंदों को कत्ल करने से माजूरी जाहिर की थी. फौज की जबान में अफसरों के हुक्म की तामील से इन्हिराफ. लेकिन अपने मुल्क में अपनी ही फौज के हाथों अपने ही लोगों को मरवाने का हुक्म कौन दे सकता है? क्यों? मशरकी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ था क्या? अब तुम कहोगी कि हम एक आजाद मुल्क के आजाद और खुद मुख्तार शहरी हैं. वेल, ये तो मैं नहीं कहूंगी. वी ऑल ड्रीम, पर सब ड्रीम्स पूरे तो नहीं हुआ करते. कैन यू बिलीव, उसके साथ 30 और जवान भी हैं और खबर है कि अभी और भी आएंगे. व्हाट? सब पर यही इल्जाम है? ये तो अंदर की बात है. असल में तो किसी ने जनरल पर कातलाना हमला किया था और किसी ने जीएचक्यू में पिशा. सब सिपाही है, कोई अफसर नहीं? एक भी नहीं. ये कैसे हो सकता है कि एक भी अफसर ने ऐसा बेहुदा हुक्म मानने से इनकार न किया हो? आई डोंट बिलीव. सबका जमीर एक साथ तो नहीं मर सकता. आई एम श्योर अब भी कोई गैरतमंद अफसर हमारी फौज में जरूर बाकी होंगे. हाँ, तो क्यों फांसी दी? एक तो नहीं, पूरे 30 जवानों को. ये सब तुम्हें किसने बताया? अभी फौज में बहुत से बाज़मीर लोग मौजूद हैं जनरल साहब. इसलिए कि उन्होंने सदर पाकिस्तान पर हमला किया था. हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि 30 जवानों ने अपने जनरल पर हमला किया था? अब तुम ही बताओ बेबी, अपनी जान हथेली पर रखकर हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं. जी हाँ, वो तो हमें पता है कि हमारी जान अपनी हथेली पर रखकर अब किस गैर मुल्की आका का फर्ज अदा कर रहे हैं. उन्होंने आप पर हमला किया था या वजीरिस्तान जाकर अपने भाइयों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया था? जनरल साहब, आई वॉन्ट द ट्रूथ. यू कैंट हैंडल द ट्रूथ. तो सब जवानों को एक ही दफा फांसी क्यों नहीं दे देते आप कि ये किस्सा ही खत्म हो? रोज रोज की जिल्लत से तो बेहतर है उनकी जान तो छूटे किसी तरह इस जिल्लत आमेज जिंदगी से.
लेकिन फांसी कैसे दें? लेकिन फांसी कैसे दे दें? जूते कौन पॉलिश करेगा? खाने कौन बनाएगा? बच्चों को कौन खिलाएगा कि बेगमात अय्याशी कर सके? और इन नजाकत पसंद जर्नैलों को धुलाएगा कौन वॉशरूम में? वो टेररिस्ट है, और क्या उन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश करें? जिसे आप टेररिज्म कहते हैं, वो आपकी जुल्म और नाइंसाफी पर मबनी पॉलिसियों के खिलाफ लोगों का एहतजाज है जनरल साहब। जब जिंदा रहने के सारे हीले खत्म और आजादी इजहार के सब दरवाजे बंद कर दिए जाएं, तो इजहार का यही एक तरीका बचता है। बात करें तो हुब्बुल वतनी, खुलूस और किरदार पर फौरन दाग लग जाता है। मेरा ही नहीं, ISI, FBI, CIA सबका यही ख्याल है। अगर ये सब टेररिस्ट का किया धरा होता तो क्या कोर कमांडर नहीं मरता? आज तक कोई जनरल नहीं मरा। क्या बात है, आप पर तो कई कातलाना हमले हो चुके हैं, आपका तो बाल भी बेका नहीं हुआ। यही लोग जिन्हें आज आप दहशतगर्द कहकर मक्खियों की तरह मार रहे हैं। मारे नहीं तो क्या उन्हें फूलों के हार पहनाए? हार बेशक न पहनाए, लेकिन कल यही लोग जब आप और आपके आकाओं की जंग रूस के खिलाफ लड़ रहे थे, तो ये सब आपकी आंखों का तारा थे सर। सच पूछें तो ये कातलाना हमले आपके अपने खुफिया हथियार हैं सर, जो आप दूसरों को सबक सिखाने, सजा देने और हमदर्दी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ओजरी कैंप, ये दहशतगर्दी, ये कातलाना हमले, ये फिरका वराना फसादात, ये नस्ली जमातें, ये सब आपकी अपनी एजेंसियों की पैदावार है। आप अपने मुखालफों के खिलाफ और अपने मसमूम मकासद की बराबरी के लिए ये सब हरबे इस्तेमाल करते हैं। इन एजेंसियों ने अंडरवर्ल्ड माफिया बना रखी है, और यही हमारी और हमारी सिविल हुकूमतों की किस्मत के फैसले करती हैं। पाकिस्तान में होती तो 1 मिनट में मजा चिखा देता मैं इसे। तुझे मजा चखाता हूँ, वैसे तुम्हारे अमेरिकी जनरल तो है ही। तो यार तू क्या मजा चिखाएगा? बुश साहब हमारे साथ हैं, बुश साहब। हाँ। और ये जो तुम अमेरिकी जनरलों की बात कर रहे थे, अमेरिकी जनरल क्या करेंगे साले? उनकी तो अपने डिफेंस सेक्रेटरी के सामने बोर्ती बंद हो जाती है। मैं तो सदर की ऐसी की तैसी करके रख दूंगा। Don't say that. Don't say that. I saw you. बुश के सामने तो बोरकुदार बने खड़े रहते हो। Cheers. मैं कोई बुश साहब की बात थोड़ी कर रहा हूं, वो तो बिल्कुल दूसरी बात है। वो कोई हमारे सदर तो नहीं। अच्छा, अपने ईमान धर्म से बता, क्या पाकिस्तान इसीलिए बनाया था? अगर हम पाकिस्तान ना बनाते तो मैं कब का कर्नल वल्लभ बन के रिटायर हो चुका होता। इतने बड़े मुल्क में कौन पूछता मुझ जैसों को? अब 16 करोड़ लोगों की तकदीर के फैसले करता हूं मैं अकेला। और नो, आई एम फीलिंग इट इन माई ब्रेन। गुड, अब तो मजा आएगा। अच्छा, चलिए, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा है मुल्क को एशियन टाइगर बोला देगा। करोड़े तुम रहे, खरोड़े के खरोड़े। तुम्हें पता नहीं, ये गुलाम अपने आका की तारीफ में तमाम हदें क्रॉस कर सकते हैं। मैंने कहा था, कहो मुल्क तरक्की करेगा, जरे मुबादला बहुत हो जाएगा। उसने इससे भी बड़ी चवल मार दी। तोता है मेरा, तोता, खोता, एशियन टाइगर। बंदे के पुत्र बन नहीं सकते, एशियन टाइगर बनेंगे। वैसे आपस की बात है, तुम्हारे मुल्क के हालात तो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं।
तुम्हारे शिया सुन्नी के झगड़ों में इससे कई लोग ज्यादा मर रहे हैं जितना हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में मरते हैं, और तुम्हारे अमीर ज्यादा अमीर हो रहे हैं और गरीब ज्यादा गरीब, और गरीबों का कत्ले आम बल्कि नस्ल खुशी हो रही है। ये हैं ही इस काबिल कि इन्हें जूतियां लगाई जाएं, जूतियां। ब्लडी सिविलियन। ओए सिविलियन क्या, तुम्हारा फौज कौन सा खुश है? हाँ? अच्छा ये बता, तेरे कितने एनसीओज हैं जिनके पास तेरा प्लॉट है? प्लॉट एनसीओ और वो भी तेरा? चलो एक ही सही, जहां रिटायरमेंट के बाद वो सर छुपा के इज्जत से रह सके। ये प्लॉट क्या करेगा साला, वो तो कहीं भी रह सकता है। लेकिन अफसर हो या जवान, किसी को प्लॉट नहीं मिलती। हम फौजी हैं, रियल एस्टेट एजेंट या सेठ नहीं है। You shut up! I know everything for Jawans. They could be fine only if they were not stupid and illiterate and born to be ruled by slaves. They are almost as bad as civilians. You don't know? Karachi! Okay, it's okay, yeah, it's okay. No, go, call him. It's okay. Call that Subedar guy. Let me prove him. It's okay. You still here? Go now. उठाओ यार ये पाटली साहब, बहुत हो गया। It's alright. तू सही है, you are right. सुबेदार बलिदार, सर जनरल साहब के सामने पेशी तुम्हारी, अंदर आओ। सर खैर तो सर, मेजर जनरल साहब, सर मुझसे कोई गुस्ताखी होगी सर। सुबेदार बलिदार सर। हाँ, तो आगा तू बोले सुबेदार बलिदार बता दो, जनरल के करोड़ा, जनरल के करोड़ा को बता दो। ये ड्रिंक ले और ठंडा हो जाए, ठीक है? बता दो तुम्हारे अफसर यानी हम तुम्हारे साथ कैसा सलूक करते देखा, that's it. Shut up, you bloody shut up. Yes? सर ये आपके दोस्त ने भिजवाई सर, अरोड़ा सर। कभी तो मैं सोचता हूं, तुम्हारे मजहब ने ये नशेबाजी पर सही पाबंदी लगाई है। अब इसी को देखो, नशे में इसकी हालत क्या हो जाती है, पता नहीं हुकूमत कैसे कर लेता। नशे में अक्लमंद से अक्लमंद इंसान भी अपना होश हवास खो बैठता है। अक्लमंद तो इस चक्कर में पड़ता ही नहीं जलसा। खैर जो भी है, तुम फिक्र ना करो,
कोई बड़ी बात नहीं है। हम हमेशा से यही कुछ कर रहे हैं। अब तो वो मेरा मेहमान भी है। सब ठीक है, सब ठीक है। Yes. Hello. आलू के पराठे, उल्लू के पट्टे, होता ये तो उल्लू के चंपाटा, हनुमान के चेले, और शैतान के चरके। और बैठो, तू कहाँ बच्चा देखने आया है? ओए, तू बड़ा फिट गया, मेमो की बकरी का दूध पी के। तू अकेला आया है, भाभी भी साथ है? मैं पागल हूँ, टिफिन कैरियर ले आता, वो भी होटल में। भाई चलिए जायल दे पुत्र, तू अब तक रेस्टोरेंट को होटल कहता है। और तू कौन सा वकील बन गया है? मास्टर अमर और मौलवी सलामतुल्लाह के डंडे खा के मुर्गा बन के जाने देना यार। फिर बड़ी बीबियां आजकल लगाई हुई है अंग्रेजों के मुल्कों में और अक़वाम मुत्तहिदा में मौज करने। चुप कर खोते के पुत्र, एक करूंगा कान पे। हमें मौज करवाती है, हम बूढ़े। अब दादे भाभी से चलता सारा काम। अंदर चल यार। उल्लू के पट्टे, क्या चेले। क्या सुकून से दिन है आज। यार अरोड़े, तुझे याद है वो करनालपुरे की गर्म दोपहर है? हाँ, वो ठंडी रातें, वो छप्पड़ में छलांगे, वो भैंस की सवारी, वो कर्मा वाली भटियारन के बुरुदों की चोरी यार। हाँ, वो पतंगी उड़ाना क्या मजा आता था। वो स्कूल से फोटा लगाना और फिर मास्टर अमर के हाथों मुर्गा बनना यार। और वो सलामतुल्लाह का कान पकड़वा कर बैठ के लगवाना। सब कितना अच्छा था, कितने प्यारे दिन थे। कहाँ गया वो सब? ऐसी दौड़ आई कि पीछे मुड़कर देखना नसीब नहीं हुआ यार। नफ्सा नफसी यार। भागम भाग, अगे दौड़ पीछे छोड़। यार तुम्हें ये रोज इस सर्दी में बैठना पड़ता है? क्या करें साहब, ड्यूटी इज ड्यूटी। ड्यूटी व्यूटी जो भी है,
تمہیں جب میں نے کہا تھا کہ تم روز بلا ناغہ مجھ سے پڑھنے آؤ گے شام کو تو تم پہ اثر کیوں نہیں ہوا؟ تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم اپنے افسر کے الٹے سیدھے آرڈر کے علاوہ کچھ نہیں مانتے؟ معافی دے دو صاحب، ڈیوٹی بڑا سخت ہے. فوج کی ڈیوٹی سے تو موت ہی بچاتی ہے صاحب. 24 گھنٹے تو جانور بھی ڈیوٹی نہیں دیتے میاں. تم پڑھائی سے جان چھڑاتے ہو، اس لیے ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو. قسم لے لو صاحب، ابھی دل بڑا خراب ہوتا ہے. اگر پڑھ لکھ لیتا تو فوج میں کیوں جاتا صاحب. تمہاری سزا ہے کہ تم 2 گھنٹے ایکسٹرا پڑھو گے. صاحب ہماری 7 پوستے میں انگریزی سیکھ لے تو ہم افسر نہیں بن سکتا. کیوں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہو صاحب؟ اچھا فضول باتیں نہیں کرو. لکھو، الفاظ لکھو. آج لکھو آکسی موران. کیا صاحب؟ آکسی موران. جی آکسی موران کیا صدر بش کا بھائی ہے صاحب؟ صدر بش کا بھائی کون ہے؟ یہ تو تمہیں اگلے الیکشن میں پتا چلے گا. یہ تیسرا موران ہے. تیسرا؟ صاحب آپ نے بھی انگریزی پڑھ پڑھ کر برباد کر دیے. پہلے بش کا بھائی تھا، اب یہ دوسرا بنتا ہے. تم فوجی ہو، فوجی رہو میاں. سوچنے سمجھنے کی زحمت کیوں کرتے ہو؟ دوسرا موران وردی میں ہے، یہ تیسرا موران ہے. آکسی موران. ہاں، آکسی موران کا مطلب ہوتا ہے 2 الٹ الفاظ کو لے کے اکٹھا کر دینا. جیسے بے نظیر اور نواز. بے نظیر اور نواز وہ تو دونوں ایک جیسے ہیں. یہ تو جیسے ملٹری اور انٹیلیجنس. اچھا. ملٹری میں بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں پروفیسر. انٹیلیجنٹ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا میجر صاحب، جب تک انٹیلیجنس کا استعمال نہ کیا جائے. یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم انٹیلیجنس استعمال نہیں کرتے؟ سامنے کی بات ہے، ورنہ چند کروپ جنرل بے شمار افسروں اور جوانوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. یہ کیا بکواس، ریڈیکولس، نان سینس. تم فوجی ہو، فوجی رہو میجر. دانشور بننے کی کوشش مت کرو. یو ڈرٹی سوائن. بلڈی سیولین. یہ کیا بکواس ہے؟ سر یہ سیولین. واٹ؟ سر یہ فوج کی خلاف فتح کر رہا تھا سر. کس کی فوج کی؟ ہماری سر. ہماری کیا مطلب؟ پاکستان کی سر. پاکستان کس کا ہے سر؟ پاکستان کس کا ہے؟ پاکستان سر آرمی سر. آپ بکواس کر رہے ہو. میں پوچھ رہا ہوں پاکستان کس کا ہے؟ فوج کا؟ ان لوگوں کا یا خدا کا؟ خدا کا تو سب کچھ ہے سر. اسی نے پاکستان دیا سر. کسے؟ فوج کو سر. آرمی سر. تمہاری تنخواہ کہاں سے آتی ہے؟ ملٹری اکاؤنٹ سے سر. وہ تو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں یو ایڈیٹ. تمہاری تنخواہ ان لوگوں کے خون پسینے کی کمائی سے آتی ہے جنہیں تم مار رہے ہو. یس سر. تنخواہ دیتا ہے وہ مالک ہوتا ہے اور جو تنخواہ لیتا ہے وہ ملازم ہوتا ہے. تم ان کے کیا ہوئے؟ ملازم سر. جو ملازم اپنے مالک کی خدمت کرنے کی بجائے اس سے لڑتا ہے اسے سزا ملنی چاہیے یا نہیں؟ رہنے دیں جنرل صاحب، کوئی بات نہیں. تم بیچ میں مت بولو سویلین، یہ ملٹری کے ڈسپلن کا معاملہ ہے. اگر ان کا بس چلتا تو تمہاری وردی اتار کر تمہیں اندر کر دیتے. کتنے بے بس ہیں. کم آن، ڈبل اپ 10 مائلز ناؤ. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ تو ان کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے. یہ سزا آپ کی دل جوئی کے لیے نہیں دی گئی ہے، فوج کا ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے دی گئی ہے. جو سولجر اپنے آبجیکٹو اور ڈسپلن سے پرے ہٹ جائے then he is a dead soldier and I cannot afford my soldiers to be dead. کچھ عقل اور سوچ سمجھ سے کام لیں آپ. کل کی چائے میرے ساتھ پیئیں تو مجھے خوشی ہوگی. تیری وفا سے کیا ہو تلافی کے دہر میں، تیرے سوا بھی ہم پہ بہت سے ستم ہوئے. جنرل سے جنرل ٹچرائے جو
शिट, ये प्रोफेसर यहाँ भी आ गया। दरवाजा किरकर करके रख दिया तुमने। तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी रूट्स कहीं भी नहीं है। रूट्स के बगैर इंसान धोबी के कुत्ते की तरह न घर का होता है न घाट का। अगर आपका इस बात से मतलब ये है कि मैं किसी कुर्सी से चमट जाऊं, वो मुझे और मैं उसे दीमक की तरह खाते चले जाएं, तो वाकई मेरी रूट्स कहीं भी नहीं है। मैं आपका मुकाबला कैसे कर सकता हूं साहब आदर? मैं अपने खून पसीने की कमाई से इन काफिर फरंगियों के मुल्कों से जो कमाता हूं, अपने हजारों दूसरे हुब्बुल वतन लोगों की तरह आप और आप जैसे दूसरे अय्याश और नाहल हुक्मरानों की अय्याशियों के लिए वतन भेज देता हूं। आप अपने ही लोगों का खून निचोड़कर सारी रकम समेटकर अपने बच्चों और दूसरे फैमिली मेंबर्स को दूसरे मुल्कों में भेजते रहते हैं। झूठ, बकवास। कौन से फैमिली मेंबर? सबूत लाओ। आपने साबित किया था सरे महल किसका है, आपने साबित किया था नवाज शरीफ गद्दार है। आपने क्या साबित किया अब तक? मैं तुम्हारी बकवास इतने तहम्मुल और रवादारी से सुनता रहा हूं। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है मेरे करैक्टर और मेरी अजमत का? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जनरल साहब कि आप क्या सोचते हैं, कैसे ख्वाब देखते हैं। गुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्जा, अय्यूब, याहिया, भुट्टो, जिया, इसहाक, सब ने दूसरों के साथ जो किया था उनके साथ भी वैसा ही या उससे बुरा सलूक हुआ। शायद पहले आपकी बात ठीक होती, मगर इस दफा जो होने वाला है, बहुत अरसे तक कोई जनरल या कोई सियासतदान किसी की पीठ में छुरा घूमने की जरूरत नहीं करेगा। अब वक्त आ गया है कि आप भी हिसाब दें। हिसाब दें? बेटा, अभी तो मैं दूसरों से हिसाब लेता फिर रहा हूं। तुम बताओ, तुम क्यों अपना मुल्क छोड़ आए? जनरल साहब कहते हैं बीट देम, ज्वाइन देम और क्विट देम। मुझ में इतनी कुव्वत और हिम्मत नहीं थी कि मैं आप और आपके पेशरों को बीट कर सकता। आपको ज्वाइन करने के लिए जिस अखलाकी गिरावट और दीवानगी की जरूरत थी वो मुझ में नहीं थी, तो मैंने वही किया जो इन हालात में करना चाहिए, हिजरत। अगर आपने जिंदगी को गाली और मुल्क को जहन्नुम ना बना दिया होता तो कोई यहां से जाने का सोचता भी नहीं। तुम जितनी मर्जी बकवास कर लो, अपनी चरब जुबानी से अपने आप को जितना भी इंटेलेक्चुअल साबित करने की कोशिश कर लो, तुम जैसे लोगों की ना तो कोई लॉयल्टी होती है ना ही क्रेडिबिलिटी। कोई कैसे एतबार कर सकता है तुम पे? मैं गरीब क्या बातें बनाऊंगा जनरल साहब। मैं तो अपने ही लोगों को कायल ना कर सका कि उन्हें गुलामी की ये जंजीरें तोड़कर आजाद होना है। आजादी चाहिए इन्हें। आपका मामला भी अजीब है साहब। ना आप हमें जिंदा रहने देते हैं, ना आप हमें मरने देते हैं। हमारे साथ भी आपका गुजारा नहीं होता और हमारे बगैर भी आप नहीं रह सकते। इसलिए जब तक सिसक सिसक कर हम आपके दर पर पड़े रहेंगे, आपका काम चलता रहेगा। पता नहीं तुमने क्यों साथ चुरा रखे इन टके के लोगों को। मेरी बर्दाश्त की हद खत्म होती जा रही है इस बास्टर्ड प्रोफेसर। अब इसे छोड़ो भी, लेट देम बार्क। पीपल नीड एन आउटलेट। वैसे भी तुम्हारी मीडिया पॉलिसी भी तो यही है। हम इन्हें भौंकने जरूर देते हैं मगर बांध के रखते हैं, बांध के, समझे? टेक इट इजी, पैट्रनाइज देम। इन्हें अपने बड़ास निकालने दो, बजाय इसके कहीं और जाकर बकवास करें। आस्क हिम व्हाट ही वांट्स। हड्डी वड्डी डाल देना ज्यादा भौंके तो। हाँ, स्विमिंग का मूड है या बस चले? छोड़ यार, मूड खराब हो गया। चल चलते। चल।
سر مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ آپ زندہ ہیں اور فوج میں ہیں. کیا مطلب؟ کچھ نہیں سر، رہنے دیں. کچھ تو. میرا ایک فوجی دوست تھا، اس نے لکھا تھا کہ ضمیر نہیں رہا. مجھے سن کر اتنا صدمہ ہوا کہ میں اسے پوچھنا بھول گیا کہ رہا ہی نہیں یا فوج میں نہیں رہا. تمہارے دوست کا تعلق کس جہاں سے تھا؟ جی کیا مطلب؟ تمہارے دوست کو اگر یہ احساس ہو گیا تھا تو ضرور اس کا تعلق کسی اور جہاں سے ہوگا. سر یہ بتائیں، آپ کے جنرلز اسلحے کی اتنی ڈیلز کرتے ہیں، اگر ان ڈیلز کی کبھی انویسٹیگیشن ہو جائے تو پھر؟ ایسی ڈیلز کی ذمہ دار لوگ انویسٹیگیشنز نہیں ہونے دیتے. وہ کیوں سر؟ فوجی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی غیر فوجی آ کر ان کو گرفتار کرے. تو اس کا مطلب ہے اگر انویسٹیگیشن ہوئی تو گرفتاریاں ضرور ہوں گی. تم خود سمجھدار ہو پروفیسر. سر پسند تو ہم بھی نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی گرفتار کرے، فوجی یا غیر فوجی. ہمیں گرفتار کرنے تو فوراً آ جاتے ہیں. اس لیے کہ تم فوجی نہیں ہو. انٹرسٹنگ. تو فوجیوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کیا؟ اب کہا تو تم خود سمجھدار ہو. کاش ہم سمجھدار ہوتے. یو آر گیونگ اس کریڈٹ فار وٹ وی آر ناٹ. نیب بھی تو آپ لوگوں نے بنائی ہے اور آپ ہی جیسے پوتر لوگ اسے چلا رہے ہیں. پھر نیب ان فوجیوں کو کیوں نہیں پکڑتی؟ چلو پروفیسر. تمہارا یہ پوائنٹ اٹھایا تھا میں نے بڑے جنرل صاحب کے سامنے. پتا انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے کس مائی کے لال میں اتنی جرت ہے کہ کسی آفیسر کے بارے میں انویسٹیگیشنز کرانے کی سوچے بھی. جنرل صاحب، اگر وہ بندوقیں اٹھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ کسی میں حوصلہ اور جرت نہیں بچی، تو اب وقت آ گیا سر کہ ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. جس دن یہ سادہ لو عوام خواب غفلت سے بیدار ہو گئے، سب کو پتہ چل جائے گا کہ کس میں کتنی جرت اور حوصلہ ہے. آپ لوگ فرانس، روس اور چین کے انقلابات کو بھی بھول جائیں گے. چلو. انڈیا نے اپنے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو ملک کا صدر بنا کر ان کی خدمات کا اعتراف کیا اور پوری دنیا میں ان کا اور اپنی قوم کا نام روشن کیا، جبکہ انہوں نے اپنے عظیم سائنسدان کو مجرم بنا کر اپنے گھناؤنے جرائم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی اور پوری قوم کو ذلت کی اتھا گہرائی میں دھکیل دیا. ایک ہی شے بچی تھی جس میں پوری قوم کا دل دھڑکتا تھا. انہوں نے اس جام بلب قوم کی آکسیجن کی نالی پر ہی پاؤں رکھ دیا. ان کی انٹیلیجنس نے وزیرستان اور ملک کے باقی حصوں میں درجنوں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اتارتی چلی جا رہی ہیں. اسرائیلی انٹیلیجنس کے چیف نے انڈیا کا دورہ کیا اور انہیں دوسری چیزوں کے علاوہ ایٹمی تعاون کی پیشکش کی. اس لیے کہ وہ ہندو ہے اور وہ یہودی، یہ تو ہونا ہی تھا. شاید اس لیے کہ وہ پروفیشنل ہیں اور انہیں اپنا قومی وقار آپ سے کہیں زیادہ عزیز ہے. انڈیا نے یورپین یونین سے سیٹلائٹ لانچ کا کانٹریکٹ جیت لیا، جبکہ انہوں نے عید کے موقع پر بکر منڈی لگا کر 5 کروڑ روپے ہتھیا لیے، جو بے شمار عام لوگوں کے روزگار کا حصہ ہوتے. بکواس، سب بکواس. اس الو کی پٹھی کو اتنی لفٹ اس لیے دیتا رہا کہ یہ سب بکواس کرے. انہیں ان کی اوقات میں رکھنا چاہیے، نہیں تو سر چڑھ جاتی ہے. جی ضرور. ویسے بھی بکر منڈی لگا کر آپ نے شاید اسلام کی خدمت کی ہوگی، وہ بھی اپنی انلائٹنڈ ماڈریشن کے ساتھ.
लोगों को करप्शन से बचाने के लिए कर रहे हैं। करप्शन हमारे मुआशरे का कोर इशू है। अगर आप हमें करप्शन से बचाना चाहते हैं तो हमारी जान छोड़ क्यों नहीं देते सर? इस मुल्क को लीड करने की सलाहियत कौन रखता है, तुम या मैं? तुम इसे कुछ नहीं आता। तुम जो एक ब्लडी सिविलियन हो, तुम या मैं जो एक डेकोरेटरी चैनल हूं। तुम क्या हर वक्त इन बातों में उलझे रहते हो? और तुमने पूरी कौम को भी इन खराफात में उलझा रखा है। इस वक्त मेरे पास दो ऑब्वियस चॉइसेस हैं जनरल साहब। या तो मैं आपके चेले चांटों की चापलूसी करूं, दूसरा रास्ता सच्चाई और इंसाफ का रास्ता है, जो बहुत कठिन और दुश्वार गुजार है, कि मैं अपने भाइयों, बहनों और बच्चों को आपकी पॉलिसियों के खिलाफ आगाह करूं, जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता है। लेकिन तारीख गवाह है सर, जब भी लोगों में शऊर और एहसास पैदा हुआ है, उन्होंने बड़े से बड़े आमरों, जालिम से जालिम और नाइंसाफ से नाइंसाफ हुकूमत को सफाए हस्ती से नीस्त और नाबूद करके रख दिया। जनरल साहब, शर्म आनी चाहिए तुम्हें भगोड़े। मुल्क छोड़कर भाग आए, अब बातें बनाते हो। लगता है तुम अपनी इन चीप हरकतों से बाज नहीं आओगे। मैं यहां मौज में न करने आया था, तुमने जीना हराम करके रख दिया। तुम्हारा कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। आपने तो सबका जीना आराम कर रखा है, आपका क्या असर करे? बुलशिट, you stupid son of a gun! I am losing my patience with you. Get the hell out of my sight, you stupid, gun-pressed, bloody civilian! No more channel. Enough is enough. Teach this stupid bloody civilian a lesson. Or should I teach you one? Sir. हाँ, आज रात को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टॉप सीक्रेट। यहाँ मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। सर जाने दे, मैं तो मुफ्त में मारा जाऊंगा। चौधरी साहब, सोच समझ के बात किया करो। तुम्हारा नाम नेक्स्ट मिनिस्टर्स लिस्ट में शामिल है। सर, लास्ट टाइम भी आपने यही कहा था। लास्ट टाइम मजबूरी थी। अगर बात समझ में नहीं आती तो भेजो तुम्हारी वीडियो मीडिया को, सारी उम्र जेल में सड़ोगे। सर जाने दे, मैंने कब ना की है? आप तो खामखा नाराज होते हैं। मैं पहुंच जाऊंगा। जी। इधर का कानून बड़ा सख्त है साहब, ये आपको पकड़ लेंगे। मुझे कैसे पकड़ लेंगे? मुझे कानून नहीं सिखाओ, तुम किस मर्ज की दबाओ। माफी चाहता हूँ साहब, मेरा तो जाना हाजिर है। तुम्हें किस दिन के लिए रखा था वलीदाद? तुम्हारी गर्दन में तो हर फंदा फिट आना चाहिए। पता नहीं कब किस जगह तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। जनाब, मैं अकेला तो नहीं होगा, ये तो चौधरी सियासतदान में करूंगा। हाजिर सर। और अगर मैं फंसी गया तो जनरल साहब मुझे साफ बचा लेंगे।
ये लोग दोस्त हैं उनके? मेरा दादा हमको बताया था साहब, अंग्रेज किसी का दोस्त नहीं होता साहब। और ये अंग्रेज नहीं है, ये अफ्रीकी है, अफ्रीकी। टोपी लगाए जनरल कहता है फॉरेन एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है। बास्केट लगाए मच्छर कहता है कौम एशियन टाइगर बनने जा रही है। पगड़ी लगाए खटमल कहता है आजादी की बख्शिश हमें दी जा रही है। इसीलिए तो बड़ी मछली छोटी को खा रही है। हमारे चुने हुए कुत्ते हम ही पर भौंकते हैं। हमारे रखे हुए कुत्ते भी हमें ही काटते हैं। हमारी ही बोटियां आपस में बांटते हैं, क्योंकि एक जनरल, साला एक जनरल। हमारे वजूद में फटते बारूद की आवाज से नंगे रास्ते कांपते हैं। उनके साथ क्या होने वाला है ये सोचकर कल के पैदा हुए बच्चे एक सांस लेते हुए हाँफते हैं। अमरीकी शैतानों की नाजायज औलाद तहलका मचा रही है और हम जनूबी एशिया में बसने वाले इंसान जिंदगी को गाली बनाए बैठे हैं। क्या करें?